پھر کراچی مرتضی وہاب بھٹائی کالونی میں نو تعمیر شدہ پارک کا افتتاح کریں گے۔ اس موقع پر میں کراچی میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا منتخب ہوا اور اس انتخاب کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کراچی والوں کو یہ امید بلاول صاحب کی نظر میں کی شکل میں نظر آئی کہ کام کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے پچھلے چند سالوں میں اپنی قیادت کے ویژن کے مطابق جس طریقے سے کام کیا، اس کا نتیجہ تھا کہ 15 جنوری کے انتخابات میں اس ٹاؤن سے پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی اور سارے کراچی میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا لوگوں نے اور کراچی کا میئر اور ڈپٹی میئر بھی پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کا منتخب ہوا۔ جس امید کا اظہار کراچی والوں نے بلاول صاحب کے ساتھ کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہے، اس امید کو پورا کرنا اب ہم تمام کارکنان، تمام جیالوں کی اولین ذمہ داری بھی ہے اور ترجیح بھی ہے۔ اور دن رات چاہے سلمان ہو، چاہے مرتضی وہاب ہو، یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ان 13 ٹاؤنز کے چیئرمین وائس چیئرمین صاحبان ہو، یا ان یوسیز کے چیئرمین وائس چیئرمین صاحبان ہو، وارڈز کے کاؤنسلر صاحبان ہو، یا جن علاقوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب نہیں ہو پائی، وہاں پہ ہماری تنظیم ہو، ہمارے کارکنان ہو، وہ سب کے سب اسی ایک کام کے اوپر عمل پیرا ہے کہ کس طریقے سے کراچی والوں کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے، ہم سب کا وعدہ ہے، کمٹمنٹ ہے کہ آئندہ 4 سالوں میں کوئی اختیارات کا رونا نہیں رویا جائے گا، کوئی فائلیں نہیں پھینکی جائیں گی، صرف کام ہوگا اور عوام کا کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ جس جگہ پر میں موجود ہوں، آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے یار کہ ابھی ٹاؤن آیا ہے، ابھی میئر آئے، یہ کام کیسے شروع ہو گیا۔ جس جگہ پر میں موجود ہوں، اس جگہ پر کچرا ہوتا تھا، قبضہ ہوتا تھا، پھر یہاں ہمارا ایک دوست رہتا ہے، ایک محسن پیپلز پارٹی کا رہتا ہے، اس نے اس جگہ کی نشاندہی کی مجھے جب میں ایڈمنسٹریٹر تھا، اور کہا کہ مرتضی صاحب یہاں کے علاقہ مکینوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے، بزرگوں کے لیے ہمیں ایک ایسی گرین سپیس کی ضرورت ہے تاکہ لوگ بآسانی بیٹھ سکیں۔ اس زمانے میں وہ احکامات جاری کیے گئے اور ڈی جی پارکس یہاں پر موجود ہے، کام سٹارٹ ہوا، پھر بیچ میں رک گیا تھا وہ، خیر واپس آنے کے بعد پھر کام سٹارٹ کرایا، اور ابھی آئے ہوئے کوئی 1.25 مہینہ 1.5 مہینہ ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے کہ وہ وعدہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جیالے ایڈمنسٹریٹر نے اس زمانے میں کیا تھا، وہ آج بلاول صاحب کا جیالہ میئر، جیالہ ڈپٹی میئر، جیالہ ٹاؤن چیئرمین اور جیالی تنظیم نے اس وعدے کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ اور انشاءاللہ یہاں سے اٹھ کر ایک اور کورنگی میں ہم نے اپنے کچھ پرائیویٹ دوستوں کے ساتھ ایک گرین سپیس تیار کی ہے، وہاں جائیں گے، اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ شام میں ملیر میں سلمان صاحب کے علاقے میں ایک فٹ بال سے ریلیٹڈ ایونٹ ہے، وہاں پر جائیں گے، اور رات کو انشاءاللہ جو جشن آزادی ہے اس کو دھوم دھام سے بلدیہ عظمیٰ کراچی منانے جا رہی ہے، آتش بازی بھی ہوگی، ہلہ گلہ بھی ہوگا، تاکہ ہم ایک متحد ایک قوم کی حیثیت سے اپنے اس 14 اگست کی شام کو، 14 اگست کی رات کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ اور کل انشاءاللہ، کیونکہ وزیر اعلیٰ تو ابھی بھی ہمارا ہے، کل انشاءاللہ صبح مزار قائد پر حاضری کے بعد 2 اور منصوبوں کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ ایک منصوبہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہے، اورنگی کے علاقے میں ہے، اور دوسرا منصوبہ کماڑی میں مچھلی چوک پر ہے، اور دونوں کا انشاءاللہ افتتاح سنگ بنیاد نہیں، افتتاح پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ وزیر اعلیٰ
बल्दिया उज़्मा के साथ, मेयर के साथ, डिप्टी मेयर के साथ, हमारी तंजीम के साथ इंशाल्लाह करने जाएगा। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर सफाई के हवाले से बड़ी मुश्किलात थी, बड़ी परेशानियाँ थी। यहाँ पर पानी के भी बड़े मसाइल थे। पिछले दिनों हमने जो हाइड्रेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई स्टार्ट की, उसके बाद पानी की सप्लाई इस इलाके में बेहतर हुई। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि माफिया जो है वो बाज नहीं आती। फिर माफिया ने कुछ लोगों के ज़रिए एहतजाज कराया, धरने वरने दिए, इल्ज़ामात लगाए, ताकि वो एक बार फिर जो गैर कानूनी कनेक्शन है, हाइड्रेंट्स हैं, उनको ऑन किया जा सके। मैं तमाम ये कारकुनान बैठे हुए हैं। जावेद शेख साहब हमारे काउंसिल के रुकन भी हैं, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं। जानी मेमन साहब यहाँ से हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। ये मैं इनके साथ इनकी मौजूदगी में भी तंजीम के सामने ये बात करता हूँ कि जहाँ जहाँ ये गैर कानूनी कनेक्शन है, हाइड्रेंट्स हैं, हम कार्रवाई करेंगे। और मैं आप मीडिया के दोस्तों से ये चाहूँगा कि आप इस चीज़ को हाईलाइट करें, क्योंकि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं। किसी माफिया से लड़ना आसान नहीं होता। फारूक अवान साहब बैठे, इन्होंने बड़ी माफियाज़ का सामना किया है माजी में। अब सियासी फुटिंग पर भी इनको माफियाज़ का सामना करना है। कल एक और कार्रवाई वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया ने एक जगह पर की और आपके सामने है, मैंने वीडियो शेयर की कि फायरिंग की गई है वाटर बोर्ड के लोगों के ऊपर, अमले के ऊपर। ये वो लोग हैं जो अपने घर बार को छोड़ के आप लोगों को पानी दिलाने के लिए उन गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो कभी ये जो माफिया है ये लोगों को इस्तेमाल करती है। कुछ हमारे जो ब्रेकिंग न्यूज़ के शौकीन सियासी लीडरान हैं, जिनको धरनों का बहुत शौक़ है, उनको इस्तेमाल करती है। और कभी गोली की सियासत को करती है, कभी ये वेपन्स को इस्तेमाल करके लोगों को यरगमाल बनाने की कोशिश करती है। मैं समझता हूँ ये शहर अब यरगमाल नहीं बन सकता। जो इस शहर के अंदर ऑपरेशन हुआ, इस शहर की रौनकों को बहाल किया गया, उन रौनकों को हम ख़त्म नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। और मैं चाहूँगा आप तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो इस बात के अज़म का मुजाहरा करें कि ये शहर कराची हम सब का है। ये शहर हर कराची वाले का है, हर रंग नस्ल का है। हमें तासुब की, तफरीक की सियासत को ख़त्म करना है, हमें तनकीद की सियासत को ख़त्म करना है, हमें तरक्की की सियासत को फोकस करना है। और आप सबको याद होगा कि कोरंगी क्रॉसिंग पर एक बड़ा देरीना मसला था कोरंगी की आवाम का, वो भी यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हल किया। और उस ब्रिज के ऊपर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट हो चुका है। पाइलिंग का इस वक्त काम चल रहा है, जिसमें लोड टेस्टिंग होती है। इंशाल्लाह टारगेट है कि साल भर में उस काम को मुकम्मल करके कोरंगी की आवाम का भी भला करेंगे, जो सनतकार जाते हैं उनका भी भला करेंगे, जो मजदूर जाते हैं उनका भी भला करेंगे, जो पेशेंट्स अस्पतालों की तरफ जाते हैं उनका भला भी करेंगे, और जो तलबा तालबात यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं उनका भी भला करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये बेहतरी का सफ़र, तरक्की का सफ़र, डेवलपमेंट का सफ़र बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में, आसिफ अली जरदारी साहब की सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन इसी तरीके से जारी व सारी रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा, आपने कहा कि जैसे पानी का मसला इस इलाके में है, आपने ऑपरेशन किया, कनेक्शन काटे, लेकिन वो माफिया फिर आ गई। पानी इस इलाके में आता था, बहुत अच्छा आता था, लेकिन फिर वही रात के टाइम जो है वो चलते हैं हाइड्रेंट, तो जिसकी वजह से इस इलाके में पानी नहीं आ पाता। इस हवाले से कुछ शफकत, देखो शफकत, आपने तो मुझे नहीं कहा था कि यार ये ऑपरेशन करो। यही जो हमारे इलाके के लोग हैं इन्होंने इस बात की निशानदेही की, जावेद साहब ने भी की, जानी ने भी की, अली राशिद साहब ने भी की, मौज़म ने भी की। मैं ख़ुद यहाँ आता रहता हूँ, लोग मेरे जाने, नाहिद बाजी पीछे बैठी है, हमारी पुरानी कारकुन है, इस वक्त सिटी काउंसिल की रुकन है। इन्होंने निशानदेही की कि हमारे लोग मुश्किल में हैं, ये पानी बिक रहा है, पानी चोरी हो रहा है। तो हमने कार्रवाई स्टार्ट की। कल जंजाल गोट में भी कार्रवाई स्टार्ट की ना। आपने कितने टीवी चैनल्स ने वो फुटेज दिखाई कि वो जो निहत्ते वाटर बोर्ड के एहलकार थे उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है। आपके कुछ मीडिया के दोस्त भी वहाँ पर मौजूद थे, उनमें से भी कोई दोस्त हमारा ज़ख्मी हुआ है। इन माफिया से लड़ना आसान नहीं है। ये माफिया कभी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे चोरी का, कभी मेरे साथियों के ऊपर लगाएंगे, लेकिन चोरी ये खुद कर रहे हैं। और इस चोरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस चोरी को बचाने के लिए ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं। वो लोग जो धरना दे रहे थे, आज उनसे पूछो, जो न्यू कराची पर खड़े हुए धरना दे रहे थे, उन्होंने कल जंजाल गोट पे धरना दिया?
कल वो धरना देने वाले क्या वाटर बोर्ड के एहलकारों के साथ खड़े हुए थे जब उनके ऊपर फायरिंग हो रही थी? वो जो सियासी लीडर अपने आप को कहता है, जिसने वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर धरना दिया था और पूरे शहर में अपने बिलबोर्ड लगा देता है, वो लोगों के अंदर मायूसी को बेचता है, कल क्या वो जंजाल गोट में वाटर बोर्ड के एहलकारों के साथ मौजूद था? जो पुलिस वाले हमारे साथ खड़े हुए थे, कार्रवाई कर रहे थे, उनके साथ खड़ा हुआ था? नहीं। इन लोगों को फैसला करना होगा कि वो माफियाज के साथ है या शहर की तरक्की के साथ है, शहर की आवाम के साथ है। और जो शख्स इस शहर की आवाम के साथ नहीं होगा वो किसी माफिया का भी हो, इंशाल्लाह उससे माफी मंगवाएंगे। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो, आपने केएमसी का जो मसाइल थे, सबसे बड़ा पेंशनर का जो मसला था तनख्वाह का, वो आपने हल कर दिया। तो अब जरा उनकी तरफ तवज्जो दी जाए कि जो उनके फराइज है तो वो भी वो ऐसा तरीके से अदा करें। दूसरा ये मसला है कि ये बता दें कि निगरान हुकूमत का मामला कहाँ तक पहुँचा। आज एमक्यू की और आपकी मुलाकात की है वज़ीर आला साहब की, तो ये मामला कब तक तय हो जाएगा और नया वज़ीर आला कब आ जाएगा? जी, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक अच्छे इशू की तरफ निशानदेही की। यार वो मसला मैंने हल नहीं किया, वो मसला पीपल्स पार्टी ने हल किया। वो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जो कहता है कि हमें लोगों का ख्याल रखना है, पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा ये है कि गरीब आदमी की खिदमत करनी है। और हमें इस बात का अदराक है कि जो लोग माजी में केएमसी के साथ मुंसलिक थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी केएमसी को दे दी, आज उनको पेंशन के मसाइल से वो दो चार थे। तो ये इस इशू को हमने बिलावल साहब के सामने भी रखा, इस इशू को हमने चीफ मिनिस्टर साहब के सामने भी रखा, अपनी काबीना के सामने भी रखा। और मैं सिंध हुकूमत की काबीना का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 1.4 अरब रुपए की ग्रांट दी है केएमसी को, ताकि वो जो पेंशन के हमें लाइबिलिटी थी, वाजिबात थे, उसको हम पे करने में अपना किरदार अदा करें। छोटी सी खिदमत की है। और यही मैं कराची वालों को बताना चाहता हूँ, जब हुकूमतें मिलकर काम करती हैं तो किस तरीके से आप मामलात को हल कर पाते हैं। वो जो लोग पेंशन ले रहे हैं ना, मेरा कोई जानने वाला उसमें नहीं है, सलमान का कोई जानने वाला नहीं है, हम सबके जानने वाले हैं। रोज़ मेरे पास कोई ना कोई आता है कि जी पेंशन का मसला हल कर दें। तो मैं अपनी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे कौल व फ़ेल में तज़ाद नहीं है। जो ऐलान करते हैं ना हम, जो वादा करते हैं, उस वादे को अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ा करते हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से अपनी पार्टी का ममनून और मशकूर हूँ। और इंशाअल्लाह मैं केएमसी के मुलाजमीन, जिनको मैं मेहनत करते हुए देखता हूँ, काम करते हुए देखता हूँ, मैं पुरुमीद हूँ कि उनको भी उम्मीद नज़र आई कि हाँ, किस तरीके से सारे इदारे मिलकर काम कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ये बेहतरी का सिलसिला स्टार्ट होगा। जहाँ तक आपने निगरां काबीना की बात की, देखिए वो फ़ैसला पीपल्स पार्टी एमकेएम को नहीं करना, वो फ़ैसला वज़ीर आला सिंध को और अपोजिशन लीडर को करना है। उनके दरमियान मशावरत हो रही है और उस मशावरत का हिस्सा कोई और नहीं है। मैं खुद कल जब मुलाकात हुई तो मैं उस मीटिंग में नहीं था। जो भी मशावरत हो रही है वो 1 to 1 उनकी होती है। और मैं बहैसियत सियासी कारकुन के इस बात पर पुरुमीद हूँ कि अल्लाह करे कि ये जो मशावरत हो रही है, ये जो 3 दिन का टाइम पीरियड है, इसी के अंदर ये मशावरत फाइनलाइज हो जाए और किसी ऐसे नाम का फ़ैसला किया जाए जो कि आज़ाद, मुनसिफाना और शफ़ाफ़ इंतखाबात के अंदर अपना किरदार अदा करे, ताकि लोगों के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो जल्द अज जल्द, जो आइनी टाइम पीरियड है, मुद्दत है, उसके अंदर एक बार फिर इलेक्ट होके आ सकें और ये जो खल्क़े खुदा है इसकी खिदमत में अपना अपना काम कर सकें। मैं पहले मीडिया से बात करूँ, फिर आपसे भी कर लूँगा। सर माजी में आपने मुख्तलिफ पार्कों का फरमाया, लेकिन उसके बाद वो जड़ गए और अब इस वक्त बुरी हालत में, वहाँ की ग्रिलें भी नहीं है, घास भी नहीं है, हत्ता कि झूले जो आपने लगाए तो बच्चों तक वो झूले भी नहीं है। 75 पार्क हमने इफ्तिताह किए थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गालिबन 5 टाउन है, पाँचों के पाँचों में जमात इस्लामी के अरकान है। पाँचों के पाँचों में वो डीएमसी जब हमारे पास थी तो केएमसी, डीसी, डीएमसी ने मिलकर काम किया और हमने विजन दिया हम 100 पार्कों को रिवाइव करेंगे। और हमने 100 पार्कों में से 75 पार्क्स को रिवाइव किया। हमने मेहनत की, सेंट्रल में बड़े डेवलपमेंट के काम किए, लेकिन आखिर में जो बैलेट है उसमें फैसला जो है वो हाफिज नईमुर रहमान साहब के। मेयर कराची कोरंगी भिटाई कॉलोनी में पार्क का इफ्तिताह कर चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहली बार कोरंगी से हमारा टाउन चेयरमैन आया है, इस टाउन से कामयाबी हुई, कराची के मेयर और डिप्टी मेयर भी मुंतखब हुए हैं, आवाम की उम्मीद को पूरा करना हमारा काम है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।